روزے کی فرضیت اور اس کا مقصد کیا ہے سر؟ بھول کر کچھ کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے بھول چوک اس سے ہوتا ہے۔ صاحب کسی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ چھوٹ گئے ہیں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھتا ہے۔ ابھی اپن نے گدن بولا ہے کہ وہ بھی سومی گدن نوئی، تو یہ والی جو دعا ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے نا؟ نہیں، صحیح حدیث میں نہیں، حدیث ہی میں نہیں ہے، حدیث ہی میں نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے۔ افطار کی صحیح دعا کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو دعا رائج ہے نا وہ یہی دعا ہے کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ دعا ہمارے معاشرے میں رائج ہے، تو افطار کے وقت ہم لوگ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ یہ دعا کو پڑھتے ہیں، کیا یہ دعا بھی ثابت ہے حدیث سے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا خلاصہ کریں۔ افطار کے تعلق سے کئی طرح سے دعائیں رائج ہیں۔ عالم صاحب کیا روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانا یعنی خون کا نکلوانا یا کپنگ لگوانا، کپنگ تھیراپی جو ہوتی ہے اس کا کروانا کیسا ہے روزے کا؟ کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی ہے تو اس کا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کسی کو آٹومیٹکلی اگر ایسے الٹی ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ ہمارے عالم صاحب نے بتایا ماشاءاللہ۔ عالم صاحب روزے کی حالت میں سرما لگانا یا آنکھوں میں آئی ڈراپس ڈالنا کیسا ہے؟ کہ قرآن جو ہے نا، قرآن جو ہے جیسا کہ عالم صاحب نے آیت بیان کی ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو اس کے بہترین انداز میں ہمیں پڑھنا چاہیے، یعنی جس طریقے سے پڑھنے کا حکم آیا نا اس طریقے سے نارملی انداز میں سمجھ کر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، جلدی ہمیں حرکت نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ بہت سے لوگوں کو ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی قرآن کو پڑھتے ہیں، شروع کے اور آخر کے ورڈ سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اس لیے ہم مساجدوں کے امام سے بھی یہ بات کہیں گے اور قاری حضرات سے بھی یہ بات کہیں گے کہ قرآن کو جو ہے نا آہستگی کے ساتھ آپ پڑھیں، پیچھے کی جو عوام ہے نا، پچھلے جو مقتدی ہے ان کو بھی قرآن سمجھ میں آنا ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آج ہم انشاءاللہ تعالی عالم صاحب سے کچھ چند سوالات کریں گے رمضان المبارک کے مہینے کے مطابق۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود الحمدللہ۔ جو سوالات عوام کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی وہ سوالات ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ سوالات عالم صاحب سے کریں گے۔ عالم صاحب ان سوالات کے جوابات قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم آئیے عالم صاحب سے شروعات کرنے سے پہلے عالم صاحب سے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے، خیریت سے ہے؟ الحمدللہ، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہم عالم صاحب آپ سے کچھ سوالات کریں گے رمضان المبارک کے مہینے کے مطابق، جو عوام کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی ہے، سبھی کے ذہنوں میں ہوتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے مطابق سوالات۔ تو ہم آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کریں گے اور آپ انشاءاللہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بنا دیری کیے ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارا عالم صاحب سے یہ ہے کہ روزے کی فرضیت اور اس کا مقصد کیا ہے اصل؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام نازل ہو ہم سب کے پیارے رسول جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ روزوں کی فرضیت، جی تو روزوں کی فرضیت کے تعلق سے آپ دیکھیں گے تو روزہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزہ کب فرض ہوا۔ تو روزہ 2 ہجری کے اندر فرض ہوا، اور اس کی فرضیت کے تعلق سے اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر، پارہ نمبر 2 کے اندر فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے تعلق سے دیکھیں گے تو حدیث نمبر 8 میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ تو یہاں پر جو ہے بنیادی اصول کے تحت، یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایک صوم رمضان بھی ہے، تو یہ فرضیت اس سے ہوتی ہے۔ اور آپ نے مقصد کے تعلق سے پوچھا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت، اس کے مقصد کو، اس کی مصلحت کو بہترین طریقے سے سمجھتا ہے، لیکن ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے ان تمام مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 183 پارہ نمبر 2 میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اس کی فرضیت اور اس کا مقصد جو ہے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین طریقے سے عالم صاحب نے جواب دیا کہ روزے کا جو مقصد بتایا ہے وہ تقوی کا حصول ہے، یعنی ہمارے اندر تقوی آئے، ہمارے اندر پرہیزگاری آئے، یہ مقصد ہے اصل جو عالم صاحب نے بتایا۔ بہترین طریقے سے عالم صاحب نے جواب دیا ماشاءاللہ۔ آئیے ہم دوسرا سوال عالم صاحب سے کرتے ہیں، کیا بھول کر کچھ کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے بھول چوک اس سے ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمازوں کے اندر بسا اوقات کبھی کبھار بھول جایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہم سے جب بھول چوک ہو جایا کرے تو مجھے بتا دیا کرو۔ تو بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر 6669 نمبر کے حدیث ہے، من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے اس حال میں کہ وہ روزہ ہو،
तो अपने रोज़े को पूरा करें। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खिलाया और पिलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आलिम साहब ने कि भूल कर कुछ खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसीलिए मेरे भाई, अगर आप लोग भी या हम में से कोई भी शख्स अगर भूल कर कुछ खा पी ले तो हमें रोज़े को पूरा करना चाहिए। भूल कर खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता, जैसा कि आलिम साहब ने दलाइल के साथ ये बात रखी हमारे सामने। माशाल्लाह, रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है? रोज़ा टूटने के ताल्लुक से जब आप किताबें पढ़ेंगे जी तो बहुत सारी किताबें रोज़े के ऊपर लिखी गई हैं। उसमें बेशुमार चीज़ें हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये मुख्तसर वक्त यहाँ पे है, मुख्तसर तरीके से बताना पड़ेगा। जैसे जानबूझकर खाना पीना, मुबाशरत करना और अपने आप से खुद से तय करना, ख़वातीन का हैज़ या निफास की हालत का होना, तो इन तमाम वजूहात की बिना पर रोज़ा टूट जाता है। माशाल्लाह, मुख्तसर वक्त में आलिम साहब ने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया ये बात कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है। आइए अगला सवाल हम आलिम साहब से करते हैं कि अगर रोज़ा छूट जाए किसी वजह से तो उसकी कज़ा कब तक कर सकते हैं? रोज़ा छूट सकता है, बसा औक़ात इंसान बीमार होता है, ख़वातीन के अलग मसाइल होते हैं, इंसान सफ़र में चला गया तो रोज़ा छूट सकता है। इंसान बीमार हो गया, सख्त बीमार हो गया, रोज़ा छूट सकता है। लेकिन उसके ताल्लुक़ से जो हदीस आती है कि भाई अगर रोज़ा छूट गया है तो उसे चाहिए कि जल्दी रमज़ान के बाद फ़ौरन पूरा कर लें। बेहतर तो ये है, जैसे वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत, उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो, तो बेहतर ये है कि जल्दी पूरा करें। लेकिन अगर जल्दी पूरा नहीं कर सकता किसी वजह से तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस आती है कि जब मेरे रोज़े छूट जाते थे तो मैं शाबान से पहले मतलब ये कि उसका क़ज़ा कर लेती थी। और हदीस इस तरह की है, शाबान का रोज़ा मुझसे छूट जाता, शाबान से पहले उसकी क़ज़ा की तौफ़ीक ना होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की वजह से वो मौका ना पाती तो शाबान यानी जो लास्ट महीना है रमज़ान से पहले का, उसमें रोज़ा रख लेती। गोया कि मालूम ये हुआ कि शव्वाल से लेकर शाबान तक जो है रोज़ा क़ज़ा जो है उसको रखा जा सकता है, जब चाहे आप रखें। लेकिन बेहतर ये है कि उसको जल्दी करें, चाहे तो पैदर पे रख लें लगातार और चाहे तो एक का दिक्कत छोड़कर 1 महीना 2 महीने छोड़कर भी रखा जा सकता है। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आलिम साहब ने इस सवाल का भी जवाब दिया। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क़ज़ा रोज़े का फ़िदिया कितना देना होगा? यानी अगर कोई रोज़ा क़ज़ा हो जाए तो उसका फ़िदिया कितना देना होगा हमें? क़ज़ा रोज़े का फ़िदिया जो है, पहली बात ये याद रखें कि अगर कोई शख्स रोज़ा छोड़ रहा है तो उसे चाहिए फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, उसे चाहिए कि दूसरे औक़ात में वो पूरा करें। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जो पूरा नहीं कर सकता, बीमार है या दायमी मर्ज़ में मुब्तला है हमेशा के लिए, तो ऐसे शख्स, जैसे कोई बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा है, इस्तिताअत नहीं रखता, जो क़ज़ा नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि एक मिस्किन को खाना खिलाए। एक मिस्किन को खाना खिलाए। आपने पूछा कितना देना है, कितना फ़िदिया देना है, तो मिस्किन का खाना भी कितना होना चाहिए, इसके ताल्लुक से भी सुनन दारुक़ुतनी के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 198 और हदीस नंबर 2386 आती है। उसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल आता है, उसके अंदर कहते हैं वह शेखुल कबीर अल्लज़ी ला यस्ततीउ सियाम फ़युफ़्तिरु व युतइमु अन कुल्लि यौमिन मिस्कीनन निस्फ़ साइन मिन हिंता, यानी गेहूँ का आधा सा वो जो है खर्च करे। आधा सा तकरीबन 1.25 किलो बनता है, 1 किलो 300 ग्राम तकरीबन बनता है। इस हिसाब से वो जितने रोज़े छूटे हुए उसके हों, 29 रोज़े या 30 रोज़े या जो भी रोज़े छूटे हों, उसको चाहिए कि इस निस्फ़ सा यानी आधा सा 1 किलो 300 ग्राम के एतबार से लगभग उसको जो है मिस्किन को या तो खाना खिलाए रोज़ाना के एतबार से, या तो फिर लास्ट में उसको फ़िदिया के तौर पर निकाल दें। माशाल्लाह, इस सवाल का भी आलिम साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या मुसाफिर सफ़र में रोज़ा छोड़ सकता है? मुसाफिर जो है सफ़र के अंदर अगर गया और मुशक्क़त उसे है तो रोज़ा छोड़ सकता है, और अगर मुशक्क़त नहीं है उसे तो रोज़ा रख भी सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 184 के अंदर फरमाया, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तुम में से जो मरीज़ हो या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो उसे चाहे दूसरे दिनों में रोज़ा पूरा करे। अगर सफ़र में मुशक्क़त है तो रोज़ा तोड़ दे, मुशक्क़त नहीं है, आरामदायक है और रोज़ा रखना चाहता है तो रोज़ा रख भी सकता है। यानी इसमें इंसान की हालत पर निर्भर करता है, चाहे तो रोज़ा रख ले और चाहे तो रोज़ा तोड़ दे, दोनों चीज़ें उसके अंदर आती हैं, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 184 के अंदर जिक्र है। माशाल्लाह, इस सवाल का भी आलिम साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया है कि अगर सफ़र में हो हम और मुश्किलात हमारे ऊपर आ रही है ना, तो हम रोज़े को छोड़ सकते हैं, और अगर मुश्किलात नहीं है, आसानी वाला सफ़र है, तो हम रोज़ा को रख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आलिम साहब ने जवाब दिया है। क्या आलिम साहब किसी दूसरे की तरफ से रोज़ा रखा जा सकता है? जी, आपने पूछा किसी दूसरे की तरफ से रोज़ा रखा जा सकता है, तो इसमें उसके बैकग्राउंड में, उसके पीछे जो कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। अगर ज़िंदा हो और रोज़ा छूट जाए तो क़ज़ा करें,
ताकत अभी नहीं है, बाद में ताकत मिल गई तो कज़ा करेगा। कज़ा नहीं कर सकता, अगर बाद में भी नहीं कर सकता तो फिदिया देगा। और अगर रोज़ा उस पर है और मर गया, उस पर नज़र के रोज़े हैं या फ़र्ज़ रोज़े बाकी छूटे हुए हैं, छूट गए हैं, तो उसका वली उसकी तरफ से रोज़ा रखेगा। जी। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, सही बुखारी की रवायत, हदीस नंबर 1952, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन माता व अलैहि सियाम साम अन्हु वलियुहु, जो शख्स मर गया उस पर रोज़े थे, चाहे नज़र के रोज़े हों या फ़र्ज़ रोज़े हों, साम अन्हु वलियुहु तो उसकी तरफ से उसका वली रोज़ा रखेगा, उसका वली रोज़ा रखेगा। तो कुल मिला के मामला ये है कि ज़िंदा अगर हो और ताकत रखता है, रोज़ा छूटा हुआ है, तो वो बाद में पूरा करेगा। ज़िंदा हो, ताकत नहीं रखता तो फिदिया देगा। और अगर मर गया, उसके ऊपर रोज़ा हो, तो उसका वली उसका रोज़ा रख सकता है। ये हदीस है सही बुखारी का, हदीस नंबर 1952। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आलिम साहब ने इस सवाल का भी जवाब दिया है, बेहतरीन अंदाज माशाल्लाह। क्या सहरी की दुआ और रोज़े की नियत करना सही है? कैसा है रोज़े की नियत करना? सहरी की कोई दुआ नहीं है। अच्छा। सहरी की दुआ खासकर मेरे इल्म के अंदर तो ऐसी कोई हदीस नहीं है जो सहरी की दुआ हो। इसी में मैंने दूसरा सवाल किया है कि रोज़े की नियत करना कैसा है? रोज़े की नियत के ताल्लुक से जो दो अल्फाज आते हैं और मुआशरे के अंदर राइज हैं, रोज़े की नियत, नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि तआला मिन शहर रमज़ान, एक अल्फाज तो ये हैं, और दूसरे अल्फाज हैं वो बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। जी। ये दो अल्फाज जो हैं जो है नियत के ताल्लुक से हमारे माशरे के अंदर राइज हैं, जो सुन्नत से साबित नहीं है। बिल्कुल सुन्नत से साबित नहीं है, क्योंकि नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। इंसान मुंह से अगर कोई बात कह देता है वो कौल बन जाता है, वो नियत नहीं रहती। नियत दिल के इरादे का नाम है, और जो मुंह से अदा हो, जो जुबान से अदा हो, वो कौल हो जाती है। लिहाजा ये दोनों अल्फाज जो नियत के ताल्लुक से हमारे माशरे के अंदर राइज है, ये जो है सुन्नत से साबित नहीं है। और गदिन मतलब क्या होता है? इसमें गदिन का अल्फाज गदिन है का ना? लफ्ज़ होता है आइंदा कल। अच्छा। ये रोज़ा रखना है तो आज हमें, और आइंदा कल का कल के रोज़े के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, तो ये भी जो है सही नहीं है। और क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्फाज साबित भी नहीं है, और नियत जो है दिल के इरादे का नाम होता है, इसलिए ज़ुबान से नहीं कहना है। यानी रोज़ा तो हम आज का रख रहे हैं और नियत कर रहे हैं कल के रोज़े की, यानी गदिन बोले ना, तो गदिन मतलब कल होता है, जैसा कि आपने बताया। अभी अपन ने गदिन बोला है कि वो भी सौमी गदिन नवई, तो ये वाली जो दुआ है ये भी साबित नहीं है हदीस से, सही हदीस से साबित नहीं है ना? नहीं, सही हदीस में नहीं, हदीस ही में नहीं है। अच्छा, हदीस ही में नहीं है। सुन्नत से साबित ही नहीं है कि गदिन का मतलब होता है आइंदा कल। अच्छा, आइंदा कल। आज रोज़ा रखते हैं और आइंदा कल का हम कल की नियत करते हैं, तो वो तरीका भी सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि आइंदा कल हो या परसों हो, नरसों, कोई उससे मसला नहीं है। जी। अगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे और आपके महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि साबित वसल्लम, होता, जी, तो हम उसको अपने जो है सरे तस्लीम खम कर देते हैं। बिल्कुल। उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं। लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है, जी, लिहाजा इस पर कोई बात भी नहीं करना, सुन्नत से साबित नहीं है, इसलिए हम सबको छोड़ना चाहिए। ये जो दुआ आपने बताई ना, ये हदीस से साबित नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है ना? हाँ, तो इंशाल्लाह इस दुआ को भी हम सबको चाहिए कि हम इस दुआ को छोड़ें। तो ये दुआ जो हमारे माशरे के अंदर राइज है ना, वो भी सौमी गदिन न हुई, तो गदिन मतलब जैसा कि आलिम साहब ने बताया कि कल होता है, यानी हम रोज़ा रख रहे हैं आज का और नियत कर रहे हैं कल की, इसलिए हमें इस दुआ को छोड़ना है, ये सुन्नत से साबित नहीं है। आलिम साहब, मेरा अगला सवाल है, इफ्तार की सही दुआ क्या है? देखिए, हमारे माशरे के अंदर जो दुआ राइज है ना, वो यही दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु। ये दुआ हमारे माशरे में राइज है, जो इफ्तार के वक्त हम लोग पढ़ते हैं। बहुत से लोग ये दुआ को पढ़ते हैं। क्या ये दुआ भी साबित है हदीस से? इसके बारे में भी थोड़ा खुलासा करें। इफ्तार के ताल्लुक से कई तरह से दुआएं राइज हैं। जी। मैं 3 चीज़ें आपके सामने जिक्र करूँगा इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से। एक तो अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु वाली एक रवायत की मिलती है, जो मुझे आज तक किसी सही हदीस के अंदर जिक्र नहीं मिला। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि जो मुझ पर झूठ बोले जानबूझकर, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बेशक। गोया कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोल सकते हैं। लिहाजा उसूल हदीस जो बनाई गई और उस पर इजमा है, अहले सुन्नत वल जमात का इजमा इस पर है, तो एक हदीस सही होती है, एक ज़ईफ़ होती है, एक मौजू मनगढ़ंत होती है, वो ज़ईफ़ के अंदर ही आती है। लिहाजा हमें चाहिए कि जो ज़ईफ़ और मौजू और मनगढ़ंत रवायतें हैं, उसको छोड़कर हमें सही रवायतों पर अमल करना चाहिए। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु वाली जो रवायत है, ये मुझे कहीं भी सही हदीस इसकी नहीं मिली। दूसरी रवायत है अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, ये दूसरी बात है। ये सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2358 की हदीस है, और ये हदीस भी सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। इसके अंदर जो तीसरी बात है वो जो ये है कि जो सही रवायत से बिल्कुल साबित है, वो है सही रवायत से साबित है, जो सुनन अबू दाऊद ही की रवायत है, 2357 नंबर की हदीस है। ज़हबत ज़मउ वबतल्लतुल उरूक़ व तबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तो ये है हदीस, सुनन अबू दाऊद ही की हदीस है, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने हदीस को सही कहा है। तो ये 3 चीज़ें जो ऊपर बताई गई, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु, ये भी किसी हदीस में, सही हदीस में मुझे नहीं मिली। अल्लाहुम्मा लका सुमतु
वअला रिज़्क़िक अफ़्तरतु, ये ज़ईफ़ हदीस है, जैसा कि एकदम वबतलतुर्रुकू वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये सही रवायत है, इसी को हमें पढ़ना चाहिए, इसी का इल्तिज़ाम करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे आलिम साहब ने समझाया। ये दुआ जो हम इफ्तार के वक्त पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, तो ये जो दुआ है ये सही हदीस से साबित नहीं है। यानी ये जो हदीस है इसकी रिवायत, जैसा कि हमारे आलिम साहब ने बताया, ये रिवायत इसकी जो है वो ज़ईफ़ रिवायत है, सही रिवायत नहीं है इसकी। जो सही रिवायत से साबित है, जो सही हदीस से साबित है ना, वो हमारे आलिम साहब ने जो बताई। सही हदीस जो है ना इसकी, वो यही है कि ज़हब ज़मऊ व अब्तलतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, प्यास बुझ गई, रगे तर हो गई, और अगर अल्लाह ने चाहा तो सवाब भी मिल गया इंशाअल्लाह। इसलिए हमें उन दुआओं को छोड़कर असल दुआ की तरफ आना चाहिए, यानी ज़ईफ़ हदीसों को छोड़कर हमें सही हदीस की तरफ आना चाहिए। आलिम साहब, क्या रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट करवाना, यानी खून का निकलवाना या कपिंग लगवाना, कपिंग थेरेपी जो होती है उसका करवाना कैसा है रोज़े की हालत में? सबसे पहला सवाल, आपने एक ही सवाल के अंदर दो सवाल किया है जी। एक तो टेस्ट के लिए ब्लड निकालना, खून निकालना, तो इसके ताल्लुक से देखिए कि खून निकाल कर जो है टेस्ट करने के ताल्लुक से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ऐसा मिलता नहीं है। हिजामा के ताल्लुक से मिलता है, कपिंग थेरेपी जो जिसको बोला जाता है। लेकिन टेस्ट के लिए अगर खून निकालते हैं तो इसके ताल्लुक से उलमा के फतावे हैं, और उलमा ने जो फतावे दिए हैं इस ताल्लुक से, क्योंकि इसके अंदर सराहत के साथ कोई हदीस तो मिलती नहीं है। तो अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा कि इससे रोज़ा फासिद नहीं होता, और इसी तरह से जो है शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह ने भी कहा कि टेस्ट वगैरह के लिए खून निकालने से रोज़ा फासिद नहीं होता। रही बात कपिंग थेरेपी के ताल्लुक से, जो जिसे हिजामा कहा जाता है, तो इसके ताल्लुक से सही बुखारी के अंदर हदीस भी आती है, 1938 नंबर की हदीस है, 1938 की, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतजमा व हुवा मुहरिमुन वहतजमा हुवा साइमुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा कराया और इहराम की हालत में भी थे एक मरतबा, और हिजामा कराया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में भी थे। तो रोज़े की हालत में हिजामा जो कराया जाता है, तो हिजामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया, और हिजामा के ताल्लुक से हर शख्स ये जानता है उसमें खून निकालते हैं, उसमें खून निकालते हैं। लिहाजा उससे भी ये साबित होता है कि खून निकालने से रोज़ा फासिद नहीं होता। अच्छा, रोज़ा खून निकालने से फासिद नहीं होता। अच्छा, तो ब्लड टेस्ट जो होता है उसमें भी खून निकाला जाता है? उसमें भी खून निकाला जाता है, और जो हिजामा करते हैं उसमें भी खून निकाला जाता है। हाँ, तो फासिद खून उसमें निकालते हैं और इसमें सही खून निकालते हैं, लेकिन उसको टेस्ट के वास्ते देते हैं। लेकिन खून निकालने का जो सिस्टम है दोनों तकरीबन एक ही है। यानी इस हदीस के अकॉर्डिंग जायज़ हो गया फिर वो अमल है ना? हाँ, अगर इस हदीस के अकॉर्डिंग देखें तभी जायज़ है, और उलमा के फतावे अगर देखेंगे जो है, क्योंकि सराहत उसके ताल्लुक से नहीं है, इसलिए उलमा के फतावे की तरफ रुजू करेंगे। अच्छा, तो इंशाल्लाह वो भी बताते हैं कि सही है। क्या आलिम साहब, उल्टी करने से क्या रोज़ा टूट जाता है? बहुत से लोगों को जो है ना रोज़े की हालत में उल्टी आ जाती है, तो उससे क्या रोज़ा टूट जाता है? जी, आपने अभी एक सवाल किया था कि भूल चूक से खाना। जी जी। तो देखिए कैसा रहता है, बहुत सारी चीज़ें इंसान भूल चूक से भी करता है, और कभी कभी ऑटोमेटिक कोई चीज़ें हो जाती हैं, उसका इंसान का मतलब इंटरफेयर नहीं है, उसकी कोई मुदाखलत नहीं है, उसका कोई मतलब ये कि उसकी कोई गलती नहीं है, हो जाता है ऐसा। तो कहने की बात ये है कि इसमें हदीस मिलती है, सही सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2380 नंबर की हदीस, सही हदीस है, दराहु क़य्युन व वसाइमुन, जिसने बगैर जाने बूझे क़य कर दिया, यानी जिसको क़य आ जाए बगैर किसी जबर के और बगैर किसी वजह के, तो वो रोज़ा नहीं मतलब क़ज़ा नहीं करेगा। अगर वो क़य लाता है, अच्छा, क़य लाता है यानी जानबूझ कर, कभी कभार इंसान के मकली होती है, मतलब थोड़ा सा मतलब दिमाग हल्का नहीं रहता है और मन थोड़ा सा घबराता रहता है, तो बाज़ लोग क्या करते हैं, उंगली डाल के जो है वो क़य कर देते हैं, जानबूझ के कर देते हैं। जानबूझ के करते हैं। तो वो कसदन अगर करता है, जानबूझ के करता है, तो फिर उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, जैसा कि अच्छा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलयक़ज़ी, वो क़ज़ा करे बाद में। अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे आलिम साहब ने जवाब दिया इस सवाल का भी। अगर किसी ने जानबूझकर उल्टी की है तो उसका तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन अगर किसी को ऑटोमेटिकली अगर ऐसे उल्टी हो गई तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, जैसा कि हमारे आलिम साहब ने बताया माशाल्लाह। आलिम साहब, रोज़े की हालत में सुरमा लगाना या आंखों में आई ड्रॉप्स डालना कैसा है? इस सवाल के अंदर भी दो सवाल हैं। जी। एक तो सुरमा लगाना, जो हाँ। कोई खाने पीने की चीज़ है नहीं, वो ऊपर से लगाया जाता है, हाँ, उसमें रोज़ा फासिद होने का कोई अकल में भी बात नहीं आती कि रोज़ा फासिद क्यों होगा। लेकिन फिर भी एक हदीस है जिसको बाज़ लोगों ने सही कहा है, और बाज़ लोगों ने, जैसा कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह वगैरह ने इस हदीस को सही कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक बात आती है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक तहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा साइमुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा लगाया इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े में थे, यानी रोज़े की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा लगाया। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। अच्छा, इसी तरह अगर देखें, जो दूसरा सवाल आपका था आई ड्रॉप के ताल्लुक से, तो इसके अंदर भी जो आई ड्रॉप वगैरह इस तरह के तो कोई मामला पहले के ज़माने में नहीं थे, लेकिन फिर भी जो उलमा के फतावे देखेंगे इसमें, तो वो आता है कि भाई अगरचे इसमें इख्तलाफ है, लेकिन सही ये है कि मुतलक तौर पर रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह से सऊदी का मुस्तकिल जो फतवा कमेटी है, सही बात यह है कि जिसने अपने दोनों आँखों या दोनों कानों में बतौर दवा कतरे डाले, उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा।
اور یہ بھی یاد رکھیں اصل میں کیا اصول، ہم لوگ اصول چھوڑ دیتے ہیں. اصول مسئلہ یہ ہے، اصول کا مسئلہ یہ ہے کوئی چیز کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ، یا دیگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. سرما وغیرہ لگانا یا ہلکی سے ایک دو ڈراپ، ایک دو جو ہے قطرے ڈالنا آنکھ میں، اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ عقل میں بات نہیں آتی روزہ کیوں ٹوٹے گا، کیا وہ کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے یہ. لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بھائی نہیں میں شام کو ڈالوں گا، جیسے بسا اوقات دوا وغیرہ لیتے ہیں جب ہاسپٹل کے اندر تو 2 ٹائم یا 3 ٹائم کھانا ہوتا ہے، تو اس کو باقاعدہ ہم ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. ایک فجر سے پہلے یعنی جو ہے اذان سے پہلے کھا لیے صبح میں، اور ایک جو ہے مغرب کے بعد کھا لیے، اور ایک جو ہے سونے سے پہلے کھا لیے 10-11 بجے. تو اس طرح ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص کرتا بھی آئی ڈراپ، کان میں ڈراپ ڈالنا، یا اسی طرح دوسری چیزیں ہیں وہ ہم رات میں کریں گے تو اچھی بات ہے. سب سے بہتر بات یہ ہے کہ رات میں کیا جائے تاکہ کوئی کسی قسم کا شک بھی نہ ہو. اللہ بہت ہی بہترین انداز میں عالم صاحب نے جواب دیا ہے کہ روزے کے حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ عالم صاحب نے حدیث بیان کی اس مسئلے میں. حدیث سے ہی عالم صاحب نے ثابت کیا کہ آنکھوں میں سرما لگایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں. روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا کیسا ہے؟ یعنی وضو بناتے ہیں تو ناک میں پانی چلاتے ہیں ہم، تو کیسا ہے، کہاں تک ہے یہ؟ دیکھیے نماز کے لیے وضو تو شرط ہے اور نماز کے لیے وضو فرض ہے. تو وضو جب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو مزمزہ بولیں گے، استنشاق بولیں گے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالنے کے تعلق سے باقاعدہ وضاحت کی ہے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2366 صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ فی الاستنشاق کہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، زیادہ سے زیادہ پانی ڈالو اور اس کو صاف کرو. الا ان تکون صائما، مگر روزے دار ہو تو، یعنی اگر روزے سے ہو تو پھر ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرنا، بس حد تک ڈالنا، اس کے بعد زیادہ نہیں ڈالنا. ہاں نارملی ڈالنا ہے. نارملی ڈالنا اس لیے کہ بسا ہو سکتا ہے آدمی پانی زیادہ ڈالے اور حلق کے نیچے بہت سارا پانی نکل جائے، ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ شرط لگا دی کہ بھائی استنشاق تو کرنا ہے، ناک میں پانی ڈال کے اس کو جھاڑنا ہے، صاف کرنا صحیح ہے. زیادہ کرنا اس میں مبالغہ کرنا پانی ڈالنے میں، لیکن روزے کی حالت میں جب روزہ انسان ہو تو پھر کم کرنا چاہیے، ایک حد تک ڈالنا چاہیے، زیادہ نہیں ڈالنا. ایسا نہ ہو کہ حالت میں پانی پہنچ جائے. عالم صاحب اگر نہاتے وقت منہ میں پانی چلا جائے، یعنی روزے کی حالت میں نہاتے ہیں، بہت سے لوگ بھی نہاتے ہیں، نہانا بھی چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے. تو نہاتے وقت اگر روزے کی حالت میں منہ میں پانی چلا جائے یا غلطی سے چا بھی سکتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے ابھی اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ انسان جان بوجھ کے کوئی چیز کرتا ہے اور ایک بغیر جانی بوجھ کے کرتا ہے، بھول سے ہو جاتا ہے کبھی، یا کبھی اس کا خود کا انٹرفیئر نہیں ہوتا اور خود کی مداخلت نہیں ہوتی. انسان نہا رہا ہے، ندی میں نہا رہا ہے، کہیں اور نہا رہا ہے، تو اچانک وہ پانی اگر منہ میں چلا گیا تو اس کا مسئلہ وہی ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے. اور اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے، اس سے پہلے کے سوالات کے اندر کہ بھئی اگر کوئی شخص بھول کے جو ہے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا. لہذا اگر نہاتے ہوئے اچانک پانی اندر چلا گیا منہ کے اندر تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں وہ گالی گلوز کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے برے الفاظ میں بولتے رہتے ہیں اور گالی گلوز کرتے رہتے ہیں. تو کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے روزہ ٹوٹنا ایک الگ مسئلہ ہے اور گالی دینا ایک الگ مسئلہ ہے. انسان روزہ رکھا ہے تو اس کو فحش اور منکرات چیزوں سے بچنا چاہیے اور بعد میں بچنا چاہیے. لیکن کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو روزے کے ناجائز امور جو دیا ہے، ناجائز معاملات جو دیا ہے، اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ روزہ رکھ کر ایک انسان گالی گلوز دے، یہ فحش کلامی کرنا یہ بہت بیکار سی چیز ہے. اس میں جو ہے اس کو جو ہے اپنی زندگی سے اس کو الگ کرنا چاہیے. اور روزے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اسے عبادت میں مشغول رہنا چاہیے. گالی وغیرہ ایک فحش کلامی ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، بہت زیادہ بچنا چاہیے. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بری باتوں میں سے شمار ہوتا ہے. فواحش کے اندر ذکر ہے، یہ مذکور ہے، فواحش کے اندر ذکر ہوتا ہے یہ، اور منکرات میں سے آتا ہے. اس لیے مطلب روزے کے بعد بھی اور روزے سے پہلے بھی ہمیں بچنا چاہیے گالی سے، لیکن اگر کوئی روزہ رکھا تو اس کو بہت زیادہ بچنا چاہیے. کیا عالم صاحب فلم سیریز ٹی وی یا سیریل وغیرہ دیکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ فلم وغیرہ سیریز وغیرہ دیکھنا اور اسی طرح سے ٹی وی وغیرہ دیکھنا، یہ یاد رکھیں کہ ٹی وی بھی 2 پہلو سے خالی نہیں ہے. ایک پہلو اس کی اچھائی، جیسے ہر انسان کے پاس موبائل ہے، موبائل میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، انسان کے یوز پر ہے، انسان کے استعمال پر ہے. لیکن فلم وغیرہ دیکھنا، سیریز وغیرہ دیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں غیر محرم عورتیں اور مطلب یہ کہ گانا فحش اور جو ہے گانا بجانا اور میوزک وغیرہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ تو روزے کے بعد بھی اور روزے کے پہلے بھی اس سے ہمیں بچنا ہے. لیکن جب روزے کی حالت میں ہو تو ظاہر سی بات یہ وہ ان تمام چیزوں میں شامل ہے جو فحش اور منکرات میں سے ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے شروع سے لے کے آخر تک پورے دن میں وہ، تو پھر اسی عبادت کے اندر ان تمام ناجائز امور کو داخل کرنا کیا اچھی بات ہے؟ نہیں، اچھی بات نہیں ہے. تو کوئی بھی شخص ایک جو صاحب عقل ہوگا، سلیم العقل ہوگا، سلیم الطبع ہوگا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں.
दूसरी बात ये कि इंसान रोज़े की हालत में उसे चाहिए कि दूसरी चीज़ें करे, दुआ में मशगूल रहे, इज़्कार में मशगूल रहे, क़िरात करे और क़िरात में मशगूल रहे, दूसरी तमाम चीज़ों में जो नेक उमूर है उसमें मशगूल रहे। ये सीरीज़ वगैरह देखना और टाइम पास करना ये बिल्कुल नाजायज़ चीज़ों में शामिल है और मुनकरात चीज़ों में है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अवॉइड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सेहरी के बगैर रोज़ा रखा जा सकता है? और बहुत से लोग जो सेहरी में नहीं उठ पाते हैं, उनकी नींद नहीं खुल पाती है सेहरी में, तो क्या वो बिना सेहरी किए रोज़ा रख सकते हैं? जी, आपने पूछा बगैर सेहरी के रोज़ा रख सकते हैं नहीं। रोज़ा जो रमज़ान का रोज़ा है वो फ़र्ज़ है, सेहरी खाना सुन्नत है। लिहाजा अगर कोई सेहरी नहीं खा सका तो वो अपना रोज़ा पूरा करे, रोज़ा नहीं छोड़ सकता वो। लेकिन ये है कि बात का मसला ये है कि भाई वो कैसे हालात उसके हैं, वो हालात पर निर्भर करता है कि रोज़ा तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, उसका मसला अलग है। लेकिन अगर रोज़ा रख लिया बगैर सेहरी खाए हुए तो बिल्कुल रख सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बस ये कि सेहरी खाना सुन्नत है। और बसा औक़ात होता है सबके तकरीबन कोई रमज़ान के अंदर जो है तकरीबन सबके घर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई दिन ऐसा आता है कि अलार्म बजता रहता है, लोग जगाते रहते हैं, फिर भी कोई उठने वाला उठता नहीं है और रोज़ा जो है ऐसे मतलब लोग रखते हैं। तो रोज़ा रखना चाहिए और रोज़ा उससे अगर सेहरी नहीं हो पाई तो रोज़ा तोड़ना नहीं उससे, क्योंकि सेहरी खाना सुन्नत है और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। यानी अगर उसकी ताकत ही नहीं है, यानी दिन भर वो भूखा नहीं रह सकता है, तो क्या करे फिर इस हालत में? मैंने अभी बताया कि सिचुएशन और उसके हालात पर निर्भर करता है। इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, हद ज़्यादा दर्जा बेहोश हो सकता है या दीगर अवारिज़ और दीगर बीमारियाँ उसको लाहिक हो सकती हैं या मर सकता है। ऐसे अगर सिचुएशन हो जाए तो फिर वो मसला आएगा, मरीज़ के ऊपर कयास करेंगे या दूसरी चीज़ों पे रोज़ा तोड़ दे वो, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी है, हॉस्पिटल पहुंच सकता है। तो वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कैसा है। लेकिन सिर्फ आपका जो सवाल था वो सवाल ये था कि भाई बगैर सेहरी का रोज़ा रखा जा सकता है, तो बगैर सेहरी का रोज़ा रखा जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि सेहरी खाना सुन्नत है और बहुत बरकत की चीज़ है। सेहरी बगैर किसी वजह के नहीं छोड़ना चाहिए, सेहरी बगैर किसी वजह नहीं छोड़ना चाहिए, बरकतों वाला मामला है। और सेहरी करने से रोज़े में तक़वियत मिलती है कि इंसान खा ले तो रोज़ा रखे तो उसमें ताकत तो कुछ घंटे तक तो रहती है, जब तक हाज़मा मुकम्मल नहीं होता उसका। तो अगर लेकिन कभी छूट जाती है तो ऐसा नहीं कि सेहरी यानी सुन्नत छूट गई तो फ़र्ज़ भी छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो सुन्नत छूट गई है तो फ़र्ज़ पूरा करें। अल्लाह, इस सवाल का भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में आलिम साहब ने जवाब दिया है कि अगर कोई सेहरी में नहीं उठ पाया या सेहरी नहीं कर पाया तो रोज़ा अगर रखना चाहे तो रोज़ा को पूरा कर सकता है, वो बिना सेहरी किए भी रोज़ा पूरा कर सकता है, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है और सेहरी करना सुन्नत है, जैसा कि आलिम साहब ने बताया माशाअल्लाह। क्या तरावी के बगैर रोज़ा रखा जा सकता है? बहुत से मौलवी ये बात बोलते हैं कि अगर आपने तरावी नहीं पढ़ी ना तो आपका रोज़ा ही नहीं होगा, आप रोज़ा ही नहीं। मामले में आपका क्या कहना है? जी, अगर कोई ऐसा कहता है कि भाई बगैर तरावी का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बगैर तरावी का रोज़ा नहीं होता है, तो याद रखें पहली बात तो ये कि मैंने आज तक किसी से सुना नहीं कि किसी आलिम ने ऐसा कहा हो, मुस्तनद आलिम ने किसी ने कहा, किसी इमाम ने, किसी फ़क़ीह ने ऐसा कहा हो कि बगैर तरावी का रोज़ा नहीं होती है, नहीं रखना चाहिए, नहीं होता है, रोज़ा नहीं होता है। तो याद रखें कि आज तक मैंने ना किसी आलिम से सुना और ना ही किसी किताब में मैंने पढ़ा है। तरावी की नमाज जो है ये एक अहम चीज़ है और रमज़ान के अंदर उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। जैसे मन क़ाम रमज़ान है ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमज़ान का क़याम किया यानी तरावी पढ़ी ईमान और एहतिसाब के यानी सवाब की नीयत से और ईमान के साथ, तो उसके अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ करता है, पिछले गुनाहों के सारे माफ़ हो जाता है। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो इससे पहले गुनाह उसके थे अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ करता है। तो तरावी की एक अहमियत है अपनी जगह पे, लेकिन वो अगर कोई तरावी नहीं पढ़ता है तो रोज़ा उसका नहीं होगा या रोज़ा नहीं रहना चाहिए। तो ये बात जो है मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही है। अगर कोई तरावी नहीं पढ़ता उसका रोज़ा ही नहीं होगा। जिन्होंने ये बात कही उनके पास क्या दलील है, क्या प्रूफ है, अल्लाह उसके रसूल का कलाम पेश करें तो फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तआला उस पर कुछ गौर किया जाएगा। देखिए, अगर किसी कोई चीज़ नहीं होती है उसके बगैर तो गोया कि वो फ़र्ज़ हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात, दुनिया का कोई इमाम या दुनिया का कोई मुहद्दिस, दुनिया का कोई बड़ा आलिम, मुस्तनद आलिम, ऐसा कभी उसने नहीं कहा होगा, ख़ासकर मेरे इल्म में नहीं है कि भाई तरावी जो है फ़र्ज़ है और वो फ़र्ज़ियत अदा नहीं होगी तो रोज़ा भी अदा नहीं होगा। आज तक मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा जहाँ तक मैं जानता हूँ तरावी की एक अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो इंसान तरावी को बगैर किसी वजह के छोड़ता है तो उसे चाहिए कि ऐसा ना करे, बहुत बड़ी महरूमी है उसके लिए, बहुत बड़ी महरूमी है तरावी छोड़ना, लेकिन उसकी वजह से रोज़ा नहीं होगा ऐसा कहीं भी मेरे इल्म के अंदर जिक्र नहीं है। रोज़ा उसका हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसी सवाल में हमारा एक और सवाल बनता है आलिम साहब कि तरावी के अंदर कुरान को मुकम्मल करना ज़रूरी है? तरावी के अंदर कुरान को मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर तरावी के अंदर जो आप मुआशरे के अंदर अगर आप देख लें मिसाल के तौर पे, तो 27 तरावी तक लोग कुरान ख़त्म करते हैं, उसके बाद अलम तरा से पढ़ते हैं, अलम तरा से पढ़ते हैं।
تو اگر قرآن مطلب یہ تراویح میں قرآن پڑھنا ضروری ہوتا مکمل تو گویا کہ پوری تراویح کے اندر ہوتا، پوری تراویح کے اندر ہوتا. یہاں 27 کو ختم کر کے بہت سارے لوگ 15 کو ختم کر لیتے ہیں، 10 کو ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد فری ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ یاد رکھیں، اصل اس کے اندر قرآن نہیں، اصل تراویح ہے، اصل نماز ہے، اصل تراویح ہے. لہذا تراویح پڑھنا ہے، علم ترا سے بھی پڑھیں گے تب بھی تراویح ہو جائے گی، اور سورہ بقرہ اگر ایک رکعت کے اندر پڑھیں گے تب بھی تراویح ہوگی. لیکن یہ اس کے اندر جو سنت ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ لمبی لمبی رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. بعض صحابہ کے اندر آتا ہے 100 آیات وہ پڑھا کرتے تھے، 200 آیات پڑھا کرتے تھے، یعنی لمبی پڑھا کرتے تھے. اور بعض لوگوں کے صحابہ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے وہ لاٹھی پر ٹیک لگایا کرتے تھے، لاٹھی پر ٹیک لگایا کرتے تھے. تو کہنے کی بات ہے اس کے اندر تراویح کے اندر لمبی قرات ثابت ہے، ساری چیزیں ثابت ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے بھی قرآن ختم کرنا ضروری ہے تو قرآن ختم کرنا ضروری بالکل نہیں ہے. کہیں بھی فرض کے تعلق سے، کہیں بھی واجب کے تعلق سے مجھے آج تک کوئی ایسا فتویٰ، کوئی ایسا قول نہیں ملا کہ کسی نے نماز کے اندر یعنی تراویح کے اندر قرآن کو ختم کرنے کا کوئی فتویٰ ایسا دیا ہو جو فرض کہا ہو یا اسی طرح سے واجب کہا ہو، فرض اور واجب کہا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اس میں حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ختم کیا ہے. لیکن قرآن اگر کوئی ختم کرتا ہے یعنی پورا پڑھتا ہے قرآن تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے. 1 مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ پڑھے قرآن، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ حرمین شریفین کے اندر دیکھیں کتنی لمبی لمبی قرات ہوتی ہے.